You are a lawyer, then I wonder why family law? I wanted to do something for children. मतलब 134-year-old लॉ है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, और उसके अंदर अभी तक एज सच कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं. हमसे नहीं देखा जाता बच्चे कोर्ट के अंदर रो रहे होते हैं या फिर औरतें लड़ रही होती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं जाती हूँ तो आई एम द ओनली वन हु स्टैंडिंग एंड आर्ग्यूइंग, एंड देन देयर आर 12 to 13 or 15 people who are all men inside the courtrooms. And I'm not saying that only women can do a good job there. I think men can do a fabulous job as well. What if अगर वो थप्पड़ औरत ने मारा होता? That would be a big issue. But मर्द ने मारा तो एक थप्पड़ ही तो था. हर घर में कोई एक खातून जो है वो जो शी इज़ सफरिंग सम फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. हमारी फैमिलीज़ में किस तरह होता है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ वेयर द मैन समटाइम्स इज़ एंग्री एंड ही सेज ओके मैं तुम्हें तलाक देता हूँ. सो दैट्स अ थ्रेट टू डिवोर्स. दैट ऑल्सो काउंट्स एज वर्बल अब्यूज़. दैट ऑल्सो काउंट्स एज इमोशनल अब्यूज़. एक्चुअली से कि लॉयर्स का प्रोफेशन नोबल क्यों है? नोबल इसीलिए है बिकॉज वी हैव द लॉ ऑन आवर स्लीव्स. वी आर सपोज टू प्रोटेक्ट आवर क्लाइंट. गो टू कोर्ट एंड से कि आई एम नॉट लाइंग, I am a survivor and I need the insaf that I'm looking for. The work that you're doing, you want families to be separated? No, I want families to be happy. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 32,617 जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से 2,238 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं. बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये केसेस उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हर दूसरे घर में औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, और वो सिर्फ इस डर से खामोश है कि माँ बाप पे बोझ बन जाऊंगी, बच्चों का क्या होगा, या फिर लोग क्या कहेंगे. Our today's podcast is all about family law, domestic violence, and legal rights. And to start the conversation, we have Ms. Khushbakt Shah Jailani with us. But before moving forward, don't forget to subscribe Momcast and hit the bell icon. Assalamu alaikum, Khushbakt. How are you? I'm well, thank you. अच्छा खुशबख्त, you are a lawyer, then I wonder why family law? क्योंकि जब लॉ फील्ड में जब आप आते हैं तो you dream of like a corporate lawyer, become a legal advisory of a company, then why family law is मतलब क्यों? Well, that's a good question. A lot of people ask me that, especially because I started my career in the corporate sector. I was at a multinational. उसके बाद I was at a corporate law firm. So I think it's just a feminine urge to be more nurturing. So I think that's one of the factors, but it's also there are also several other factors. Then I realized that the custody law is more than 133-year-old. मतलब 134-year-old लॉ है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, और उसके अंदर अभी तक एज सच कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं. आप अगर वेलफेयर की भी डेफिनेशन देखें कि चाइल्ड का वेलफेयर क्या है, तो उसके अंदर लाइक कंपेयर टू अदर जुरिस्डिक्शंस उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि अगर माँ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है या बच्चे के साथ होता है, सो दैट शुड ऑल्सो टेक अवे द गार्डियनशिप ऑफ अ डैड और एनी अब्यूसिव पेरेंट. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं थी, विच इज़ वाई I became more curious, I became more concerned, so I decided, okay, I really want to dedicate my practice to this area of law, ताकि इसमें और ज़्यादा चीज़ें better भी हों. Plus at the same time, I've been part of a lot of grassroots movements and बहुत सारे activism campaigns में भी रही हूँ. और generally, as a woman, your own experiences, they dictate a lot of your realities. So I think that was another factor. There are several variables, right? So that was another factor. There was something inside me that was just saying, "Okay, you have to do something for that girl, and you have to do something for that child. Somebody needs to protect them." So I think that is something. That's how I think answer this. That's amazing. That's actually very inspiring. क्योंकि हम जब भी मतलब लॉ की बात करते हैं ना, तो it also seems to be men centered. मतलब कानून तो सिर्फ मर्द के लिए है, औरत के लिए तो कानून है ही नहीं. And you mentioned that मतलब रेप केसेस को आप डील कर रही थी, and then the custody cases, और custody की जो लॉ की आपने बात की, that is 134-year-old law. Then मतलब what was in that? How you challenged that? And I would like to know कि मतलब what was that first case which made you compel कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है and I need to support these people and Well, I would say जैसे कि आपने कहा कि मेल सेंट्रिक प्रोफेशन है,
initially when I started my own, solo practice, and then it culminated into a law firm practice. I did not go out and I did not say, okay, I have to, this is going to be my niche. This, I realized in 2023 that I want to make family law and domestic violence law my niche. And I told you different factors were there. But I I also felt कि this is such an interesting law, बट इसको इतना क्यों नहीं इसके बारे में बात किया जाता, या इसको ऐसे क्यों, मतलब बहुत सारे सीनियर लॉयर्स या लॉट ऑफ योर प्रोफेशनल पीयर्स वो टेल यू कि इस लॉ में इतना पैसा नहीं है, क्लाइंट्स आपको पैसे नहीं देते. सम ऑफ द मेल लॉयर्स वुड से कि दिस इज सो इमोशनली ड्रेनिंग, हमसे नहीं देखा जाता बच्चे कोर्ट के अंदर रो रहे होते हैं, या फिर औरतें लड़ रही होती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ, या सास बहू का प्रॉब्लम चल रहा है. सो दे फेल्ट दिस इज टू डोमेस्टिकेटेड, एंड एज यू मेंशन्ड दैट द प्रोफेशन इटसेल्फ इज सो मेल डोमिनेटेड. I can tell you the stats. I think approximately more than 200,000 lawyers are there. Usme se, you can say more than 35,000, approx 40,000 lawyers are female, which makes it like 17% women lawyers only. So on 17% women lawyers ke andar bhi, you will see most of them, you can tell, are in the corporate sector or in-house ke andar wo hain. Kyunki litigation is generally not that इतने feasible option नहीं होता. कोर्ट का environment generally बहुत harsh होता है, and you somehow have to adopt some masculine traits for you to be more assertive. You can't really go out there and मतलब कोई आपको सुनता नहीं है बेसिकली. अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दैट कोर्ट बहुत मतलब छोटा सा है, आपका एक रूम होता है, ठीक है, छोटा सा रूम होता है, उसके अंदर मेल जज है, मेल रीडर है, स्टाफ स्टेनोग्राफर मेल है, अपोजिंग काउंसिल मेल हैं. सो कभी कभार क्या बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं जाती हूँ तो आई एम द ओनली वन हु स्टैंडिंग एंड आर्ग्यूइंग, एंड देन देयर आर 12 to 13 or 15 people who are all men inside the courtroom. So now you can say that I'm the minority in the profession, and then I'm arguing a very sensitive domestic violence case, जिसके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं है ना जजेस को, ना इतनी सेंसिटिविटी है. So it does become really difficult for me to put forward that case of my client. So what I'm trying to say is that the entire profession is male-centric, and I think that is another reason why family law is constantly sidelined, and it's considered a field where it's, I think, but there's a certain sort of discomfort amongst the male gentry, I would say, or the male centric. Male sentiment, they find it more emotionally draining, and I think because it's I think that perspective dominated, which I would like to say, I would like to dispel it. I would want to say that it's a very creative, very interesting field, and a field where we need more trauma informed and very sensitive, gender sensitive lawyers as well. And I'm not saying that only women can do a good job there. I think men can do a fabulous job as well, but we really need to do away with some of the very harmful concepts that are attached to the practice of family law. Yeah. बिल्कुल खुशबख्त, एज यू सेड के मतलब इन सारी चीज़ों में बीइंग अ लॉयर हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू चैलेंज इन द कोर्ट वेयर मैन आर इन मेजॉरिटी. और मतलब आई वंडर कि आप इस तरह के उसमें जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस वैसे ही बहुत कम रजिस्टर होते हैं. हम अपनी सराउंडिंग में ही देख लें, हर दूसरे से तीसरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, बट वी आर साइलेंस्ड. औरत को खामोश करा दिया जाता है, कभी ये कह के कि बच्चों का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, माँ बाप को लोग क्या कहेंगे. सो दीज आर ऑल स्टिग्मास अटैच टू इट ना, वो वैसे ही जो है आगे नहीं आ पा रही होती. और फिर जब हम लॉ की तरफ जाएं, पता चल भी जाए व्हाट इज़ लॉ और आपके राइट्स के लिए एक लॉ है बकायदा, आप तब भी नहीं जा सकते. दीज आर द फैक्टर्स दैट स्टॉप यू ना. आपको नहीं पता कि कोई फीमेल लॉयर आपको मिलेगी या नहीं, और वो अच्छी होगी या नहीं. मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू फाइंड अ गुड लॉयर. और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने लॉ के बारे में, अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है. दैट इज़ द बिगेस्ट इशू. कि
मतलब वी डोंट नो अबाउट आवर राइट्स, मतलब हमें फैमिली लॉ के बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या आता है, हमें नहीं पता सेक्सुअल वायलेंस में क्या क्या आता है, वी डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। तो हम हर चीज़ को बस उसी स्टिग्मा को लेके चल रहे होते हैं कि नहीं नहीं मैंने भी बर्दाश्त किया था, तुम भी कर लो, एंड दिस इज़ हाउ द साइकिल गोज ऑन। उस साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश शायद शुरू हो गई है, बट अभी भी एक सदी लगेगी इस साइकिल को ब्रेक होने में। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी, एक मूवी थी इंडियन थप्पड़, तो उसमें बहुत ही मतलब जब वो केस फाइल कर कंप्लेन करने जाती है एंड शी सेज मतलब एक थप्पड़ ही तो था, मतलब दिस इज हाउ इट इज ना कि सिर्फ एक थप्पड़ ही तो था, मतलब एक थप्पड़ था बट वो नहीं उठा सकता। व्हाट इफ अगर वो थप्पड़ औरत ने मारा होता, दैट वुड बी अ बिग इशू, बट मर्द ने मारा तो एक थप्पड़ ही तो था। हेयर आई वांट टू आस्क व्हाट एक्चुअली फॉल्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम एक केस फाइल कर सकते, मतलब अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। Hmm. Okay, I love talking about this because I think for the last more than 4 years I have been at it कि किसी तरह से सिंध के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस का स्पेशल लेजिस्लेशन है उसके बारे में कितनी ज़्यादा बात हम कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, ठीक है। आई वुड बिफोर डाइविंग डीपर इनटू द लॉ इटसेल्फ, लेट मी गिव यू द स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, एंड दे आर सो अलार्मिंग कि एवरी सिंगल पर्सन शुड नो दैट डोमेस्टिक वायलेंस इज अ साइलेंट एपिडेमिक एंड वी ऑल नीड टू बी कंसर्न अबाउट इट। जैसे आपने कहा कि हर घर में कोई एक खातून जो है वो जो शी इज़ सफरिंग सम फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। ग्लोबली, एंड you'll be surprised, actually you won't be surprised, you're a woman, you must have suffered yourself, we have been a victim of all that too. 10 साल पहले UN women का डेटा आया था कि 1 in 3 women are victims of domestic violence or some form of violence. 10 साल बाद आप 2024 की रिपोर्ट भी देखेंगी तो उसमें भी यही है, 1 in 3 women. देयर इज समथिंग अलार्मिंग देयर कि इतने टाइम बाद, और आपने देखें बहुत सारी एनजीओज या इंटरनेशनल के जो भी काम हो रहा है, इवन सोशल मीडिया अब बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, लेकिन वाई इज द स्टेटिस्टिक द सेम? इवन आपके प्रिवेंशन प्रोग्राम्स भी काम नहीं कर रहे हैं, आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स काम नहीं कर रहे हैं. सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ दिस स्टेटिस्टिक्स एंड विद द पॉपुलेशन दैट्स ग्रोइंग, वी आर 240 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, और हमारे यहाँ एवरी सिंगल डे देयर इज वन केस, किसी भी आप थाने में जाके देखेंगे कि वहाँ पे फाइल हो रहा होगा, ठीक है. We need to first understand the seriousness of the problem and the fact that we have to do something about it right now. ठीक है. Now coming to the law. ठीक है. law, all the provinces have special legislation, लेकिन मैं क्योंकि सिंध में प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि 2013 में सिंध प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था. उसके अंदर डेफिनेशंस हैं कि आप किस तरह कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं, डेफिनेशंस हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, राइट. So let me give you a little bit context कि 2013 में सिंध डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है. लेकिन उस एक्ट मतलब वो हरकत में नहीं आया था, उसके किसी को नहीं पता था कि ये कानून है, जजेस की उसमें ट्रेनिंग एज सच नहीं हुई थी, एंड देन ऑब्वियसली जनरल पब्लिक डिड नॉट नो अबाउट इट. 2018 में उसमें पहली कन्विक्शन आई थी, एंड देन 2019 में हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने डायरेक्ट किया था डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि ये कानून मौजूद है तो आप लोग जनरली क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल लॉ के अंदर क्यों आ रहे हैं. ये एक स्पेशल कानून है जो कि औरतों से रिलेटेड जो भी घर में तशद्दुद हो रहा है उसमें उसको केटर करता है, तो आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं. टू द एक्सटेंट दैट the honorable judge of the high court, he's now elevated to the supreme court, he mentioned that एक मजिस्ट्रेट का काम जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रोसीजर को अप्लाई करे, औरतों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें मजिस्ट्रेट का काम है that they also have the responsibility to wipe the tears of the victim. So this is how some of the judges have interpreted this. But even after that, 2019 के बाद 2020 में, that was the first time I assisted somebody in एक domestic violence के case के अंदर. And उसके बाद I started my solo practice, and then gradually, slowly and gradually, you can say more than 25 cases we have been able to do, more than not 25, more than 50 cases, but like 25 victims. We have secured many protection orders under this, but at the same time I would say उस कानून के अंदर क्योंकि इतना अंडर यूटिलाइज्ड है, उसके अंदर इतना जूरिस्प्रूडेंस एंड नॉलेज नहीं है जजेस को, या ट्रेनिंग नहीं है, जिसकी वजह से मेरे ज़्यादा केसेस आई वुड से डिसमिस हुए हैं, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई एम मूविंग फॉरवर्ड आई रियली वांट टू सॉल्व. ठीक है. नाउ आई वुड ऑल्सो वांट टू से
that in dismissals के दरमियान एक छोटी सी win मेरी ये भी हुई थी that this year we got a conviction which was on emotional violence, and that to my knowledge, is apparently the first conviction under the Sindh law जिसके अंदर हमने इमोशनल वायलेंस को फाइनली एक्नॉलेज किया है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जिससे औरतें गुजरती हैं, ठीक है. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर अस. I'll tell you a little bit about how the law really talks to women, and how it tries to help them out. So, डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्शन 5 के अंदर डेफिनेशन है, उसके अंदर इकोनॉमिक वायलेंस, इमोशनल अब्यूज़, उसके अंदर फिजिकल वायलेंस, एंड देयर इज साइकोलॉजिकल मेंटल वर्बल अब्यूज उसके अंदर मेंशन्ड है, ठीक है. दैट साउंड्स अमेजिंग, बट ये वाकई है या एक ख्वाब है? Yes, I know. When I first came into graduation के बाद finally you get to know कि अच्छा ये कानून है, आप read करते हो, and I was really fascinated by the drafters of it as well कि इन्होंने even emotional, verbal, psychological abuse की definition में ये भी लिखा है कि if हमारी families में किस तरह होता है, most of the families where the man sometimes is angry and he says okay मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, so that's a threat to divorce, that also counts as verbal abuse, that also counts as emotional abuse. Even society की और बहुत सारे elements हैं जो कि इस कानून में mentioned हैं कि बहुत दफ़ा आप अगर लड़का नहीं पैदा कर सकते हो तो उसमें या फिर अगर आप generally you're unable to give birth तो तुम बांझ हो, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, और इस तरह की चीज़ें भी इस लॉ में mentioned हैं. And I know how the drafters have went into द प्रोसेस कि एक घर के अंदर एक हाउस होल्ड जो कि जनरल आप समझ लें टिपिकल हाउस होल्ड ऑफ पाकिस्तानी हाउस होल्ड के अंदर जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसको इस कानून के ज़िम्रे के अंदर लेके आया गया है, ठीक है. अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं जो मेरा केस था जिसके अंदर हम लोग इमोशनल वायलेंस की कन्विक्शन लेके आए थे, उसमें ये था दैट दिस 21-year-old गर्ल हु वाज प्रेग्नेंट 6 months प्रेग्नेंट थी और उसको निकाल दिया गया था घर से, एंड देन लेटर अगले दिन जो है उसको डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए गए थे, राइट. एंड आई रिमेंबर कि जब ट्रायल 2 साल के बाद हमें ये कन्विक्शन मिली थी और जब ट्रायल चल रहा था शी गेव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल, एंड आई रिमेंबर एविडेंस के टाइम पे मैं उसका बेबी पकड़ के बैठी हुई थी, एंड देन अ कॉलीग ऑफ माइन शी वाज कंडक्टिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड द चीफ एग्जामिनेशन, सॉरी. सो हाँ, तो उसमें जज साहब ने एक्नॉलेज किया कि आपका फ़र्ज़ है था कि जब आपकी वो बीवी थी और आपका बच्चा था उनके पास, शी वाज़ बेयरिंग योर चाइल्ड, राइट. तो इस्लामिकली दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि यू एज़ अ हस्बैंड एंड द फादर ऑफ द चाइल्ड दैट शी इज़ गिविंग बर्थ टू, you have a responsibility of maintaining them. So that's interesting the way the judge interpreted it, and then they said कि क्योंकि इमोशनल वायलेंस में निगलेक्ट का एलिमेंट आता है कि अगर आप निगलेक्ट करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से या फिर इन योर रिलेशनशिप यू आर निगलेक्टिंग टू समबडीज इमोशनल नीड्स और फाइनेंशियल नीड्स, देन दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ इमोशनल वायलेंस एज वेल. तो उसके अंदर फिर उन्होंने सेक्शन 5 के अंदर उन्होंने इस चीज़ को इमोशनल वायलेंस में कन्विक्शन दी थी. सो it's not के if the law says कि ये इस तरह होता है, ये सब examples दी गई हैं, but every family is different, Rosham, right? And every family dynamic is different, so it's case by case basis. That's why I always give an option to my clients that okay, family law के अगर वो किसी divorce के से related client आता है, ठीक है, they say कि okay मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, I really want, sometimes they come with a lot of के vengeance है कि मेरे साथ गलत हुआ है, एक sense of आपको एक wrong feel होता है कि आप instinctively you're like कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए. So as a lawyer you have to give them several options कि these are some of the things as well that you can explore. तो as lawyers also आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा client को I'm not saying don't become their therapist. I mean, lots of times I think I really have to wear that hat as well, in the sense that you have to be more sensitive and you can't just question them कि okay अच्छा आपने खुद किया था, आपने ने उसको provoke किया था, things like that.
So इस तरह की language भी अगर lawyers should refrain from using that as well. सर ये जो बात होती है कि आपने प्रोवोक किया था या आपने इनिशिएट किया था, आपने ही कुछ कहा होगा, दिस आर वेरी जनरल और ये घरेलू टाइप के अल्फाज है जो आई थिंक कोर्ट रूम में तो यूज़ नहीं होने चाहिए बिकॉज दैट इटसेल्फ आर वेरी ट्रिगरिंग। हम अगर नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करें, अगर कोई औरत है वो किसी भी बात से पैनिक कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, देन शी इज़ ऑलवेज ब्लेम्ड कि मतलब यू आर ओवर रिएक्टिंग, बट यू डोंट नो द होल सिनेरियो कि वो ओवर रिएक्ट किस बात पे कर रही है। when she is not validated, her emotions are not validated, उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, दैट ऑल मतलब वो जमा होता जाता है और फिर एकदम से जो एक स्पार्क सा आता है कि मतलब यू जस्ट थ्रो इट आउट थ्रो योर माउथ ना, बस मुंह से जो निकल रहा है आप बोल रहे हो। बट इसमें वही बात आ जाती है, वो सब कुछ जो हुआ उस पूरे 4 महीनों में, that is all forgiven. What you said is considered. I was going through your Instagram और वहाँ पे I saw that you shared something कि judge said कि उस औरत ने ही provoke किया है and she made the man compelled to hit her. मतलब how easy it is that to blame women कि वो खुद react कर रही है कि आओ मुझे मारो। मतलब how you challenged that and what was your situation being a lawyer and what was how you face that being that feminine inside और एक normal औरत या एक इंसान के तौर पे भी मतलब it becomes very difficult to absorb such terms कि आप एकदम से आप blame कर रहे हैं। I mean, Droshan, thank you so much for the question. It always, makes me really sad कि इस तरह होता है, ठीक है? Yesterday, I think we were talking before the recording as well. Yesterday, my colleague, she went to the court, and our client was there. There was हम लोग ना case में chief examination होता है. It's like you submit all the documents as evidence of whatever you're alleging, right? And there was a photo that we had submitted. We mentioned that okay, this is a father-in-law is abusing the woman, abusing his daughter-in-law. And the judge, he took the file and he showed it to the entire courtroom. Isse pehle he was fine. I mean, he was taking all the documentation and everything. I think something triggered in him when he saw the picture and the fact that we were giving it a context that, okay, there is some context around it. Give us the opportunity, we'll prove it. And then he shows the entire file in front of the client and the woman who was standing there as well. आप ये समझें जनरली औरतों के लिए ये सारी बातें करना मुश्किल होता है, राइट? एंड देन कमिंग टू कोर्ट विद सच अ ब्रेव फेस एंड देन यू लुक एंड जनरली पर्सपेक्टिव पाकिस्तानीज एंड लोगों का क्लाइंट्स का होता है क्योंकि द जज इज देयर, द जज इज गोइंग टू बी लाइक आवर गार्डियन और समबडी हु इज गोना टेक केयर ऑफ आवर मैटर, हु इज गोना लिसन टू अस. बट व्हाट शी सॉ एंड व्हाट माय कॉलीग सॉ, और वो फाइल उठा के उसको कहते हैं कि ये इसमें उसने कोई असला तो नहीं पकड़ा हुआ, इसमें उसने कोई बंदूक तो नहीं रखी हुई, आप क्या अलेज कर रही हैं कि ये हरास है, मतलब हम इस डॉक्यूमेंट को क्यों एक्सेप्ट करें? एंड इट वाज जस्ट अ फोटो, राइट? एंड द ट्रायल हैड नॉट इवन बिगन, मतलब हम उसको उसके बारे में हम बताने लगे थे, राइट? सो इस तरह की जजमेंट देना बिफोर इवन ट्रायल हैज प्रोसीडेड एंड नॉट इवन गिवन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बीइंग जनरली सेंसिटिव अबाउट इट, आई थिंक दैट्स अ वेरी इनडिसेंट थिंग टू डू एज वेल, ठीक है? और ऐसा रोशन पहली दफ़ा नहीं हुआ हमारे साथ कोर्ट के अंदर. हम लोग मैं अपनी एसोसिएट से डिस्कस कर रही थी कि इस किस्म की प्रैक्टिस हमने बहुत दफ़ा देखी है, बट एवरी सिंगल टाइम इट हैपेंस. इतना बुरा लगता है हमें, मतलब एंड द फैक्ट दैट एज लॉयर्स यू आर सपोज टू डिफेंड योर क्लाइंट एंड जनरली कॉन्स्टिट्यूशनली आपके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं. आप देयर आर सेवरल रेगुलेशंस व्हिच एक्चुअली से कि लॉयर्स का प्रोफेशन नोबल क्यों है. नोबल इसीलिए है बिकॉज वी हैव द लॉ ऑन आवर स्लीव्स. वी आर सपोज टू प्रोटेक्ट आवर clients and clients interest, and generally we all are protected by the constitutional fundamental rights हमारे जितने भी हैं. The least the judge could have done is be sensitive about it and be more कि आप सुन लें, ठीक है? तो वही वाली बात जो आपने आपने पूछा तो मुझे वो कल वाला इंसिडेंट याद आ गया और मुझे एंड पूरा दिन आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड आई फेल्ट सो सैड अबाउट इट. द फैक्ट दैट
इतना मेहनत करके, इतनी हिम्मत करके कोर्ट के अंदर आइए और आप री-ट्रॉमेटाइज़ हो रहे हो, यू आर लिविंग द सेम मोमेंट अगेन, राइट? तो एक तो इस किस्म का माहौल आप कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अब प्रेवलेंट होता जा रहा है, एंड ये मेरी एक समझे कोशिश है थ्रू माई डिफरेंट इनिशिएटिव्स कि ये इस चीज़ को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, राइट? एंड लॉयर्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टेल द जज कि जज साहब प्लीज दिस इज नॉट द वे यू नो दैट वी शुड बी ट्रीटिंग इट, एंड हम इसको और तरीके से भी बात इस बारे में कर सकते हैं, राइट? Now, coming to this very interesting case that you spoke about, yes, this client was more than 20 years of abuse in the marriage. And in that particular case, and I'm telling you, domestic violence cases are not black and white. There are several situations and very बहुत layered होता है, nuances होते हैं. Emotional abuse है, तो that's coupled with the physical abuse as well. बच्चों के साथ अब्यूज़ है तो वो वाइकेरियसली मॉम के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी न्यू, एंड आई डोंट थिंक आवर जजेस आर ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. बट येस, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस. इनिशियली वी डिड गेट इमोशनल वायलेंस की हमारी कन्विक्शन थी. ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, बट द नॉर्म जनरली इज़ कि there's a lot of insensitivity. ठीक है? Again, so that particular paragraph that I had posted on my Instagram was related to the fact that we submitted a USP, and the context that we had given उस evidence के basis पे हमने कहा था कि ये shouting हो रही है, but उस shouting के अंदर she is defending herself. ठीक है? और उसने उसको ऑलरेडी बहुत सारी गलत गलत चीज़ें कह दी थी. Obviously on record I'm not gonna say all of that. लेकिन आप ये देखें कि जज साहब ने उसको इंटरप्रेट अपनी मर्जी से कैसे किया ना. यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाता है. दैट्स ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रॉब्लम अभी मैंने आपके केस कल का इंसिडेंट मैंने शेयर किया. दैट judges and are also human beings, right? They are also coming from a certain background. They are also coming from a certain bias that they have for a particular gender. So I think they interpreted that entire dynamic of a husband-wife in the sense के okay, आदमी की कोई गलती नहीं है, मर्द की कोई गलती नहीं है. He is the one who's paying you, so you know you should just be more obedient. जो हमारे यहाँ कल्चर है कि the wife should be obedient. ठीक है? Now, how do I handle it? I just, I take a day or two crying about it. I feel really sad. And then, my team and all of us, we sit together. We have challenged the same thing in the high courts. High courts में हमारे पास different किस्म का challenges होते हैं. Things are, and if you're following whatever is happening within the judiciary itself, and generally Pakistan में जिस तरह का climate अभी है politically, we are trying our best. And now I've started another initiative, Mehfooz, जिसमें हम और awareness create करने की कोशिश कर रहे हैं. We're trying to also implement artificial intelligence in the training models of judges, and how we can improve the way they think basically, and how they approach domestic violence cases, how we can bring more sensitivity into it, और trauma informed approach कि आपने understand करना है. A woman who is traumatized, she operates in a very very different way than, let's say, any other woman who has not gone through something of that sort. ठीक है? So उसको एक blinders रख के आप नहीं देख सकते हो. ये बहुत ही nuanced है. I keep using the word nuances because there are a lot of layers. You need to be as sensitive as possible, and most importantly, you need to unlearn all of the things that you have in your mind about a certain gender and about a certain situation, and then approach the thing with a fresh mind. Be open to reasoning, be open to different perspectives, and don't try to be insensitive. Just be decent, just be more humane. Okay? इट इज़ एक्चुअली वेरी सैड टू नो कि मतलब कोर्ट रूम्स जिन्हें हम अपना एक तरह से स्पेस कंसिडर करते हैं कि दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमारे राइट्स मिलेंगे, एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. मतलब किसी को नहीं अच्छा लगता कि वो कोर्ट में जाए और पुलिस स्टेशंस के चक्कर लगाए. वो इतनी करेज गैदर करने के बाद यू गो टू फाइल द FIR. उसके बाद जो है आप ट्रायल्स के लिए जाते हैं. दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन द कोर्ट रूम्स. दिस इज़ एक्चुअली वेरी सैड.
खुशबख्त, आपने यहाँ पे फाइनेंसेस की बात की, तो आई वांट टू नो मोर अबाउट फाइनेंशियल अब्यूजेस। जैसे इस पर्टिकुलर केस में भी एज यू मेंशन के जज ने कहा कि वो आपके फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा कर रहा है। तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड के फाइनेंशियल जो हमारी नीड्स हैं बीइंग अ वुमन, तो हस्बैंड्स अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी भी हाउस होल्ड की बात करें, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है अपने मतलब वाइफ को देंगे या अपनी मदर को देंगे, तो उसमें ये होता है शी हैज़ टू रन द हाउस इन दैट अमाउंट होल मंथ, मतलब उस पैसे में आपने पूरे महीने घर चलाना। दैट इज़ नॉट फॉर हर स्पेसिफिक यूज़ ना। अब उसकी भी नीड्स हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। सो व्हाट कम्स अंडर द फाइनेंशियल अब्यूज लॉ? So regarding financial abuse, the law actually defines it as economic abuse, ठीक है। अब उसमें ये है कि अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहा है हस्बैंड अपनी वाइफ को, तो दैट कम्स अंडर निगलेक्ट ऑल्सो, बट ऑल्सो इकोनॉमिक अब्यूज। बट एट द सेम टाइम अभी एज सच उसको इतना ज़्यादा लॉ में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट आई रीड अ लॉट ऑफ जजमेंट्स एंड jurisprudence फ्रॉम द इंडियन कोर्ट्स एंड यूके कोर्ट्स, एंड द वे दिस इंटायर कॉन्सेप्ट हैज़ कम अबाउट इज़ के आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, छोटी सी क्या, ये बड़ी एग्जांपल ही है, लेकिन यू माइट हैव हर्ड समबडी ऑन योर नेबरहुड, समवन इन योर फैमिली के दे women will bring a lot of gold to their ससुराल, ठीक है। उस गोल्ड को समटाइम्स हस्बैंड्स कहते हैं कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, नौकरी मुझसे नहीं हो रही है, तो मुझे गोल्ड दे दो, मैं उसको सेल करके आई इन्वेस्टेड, और लेट्स बाय अ फ्रिज फ्रॉम योर गोल्ड, अभी पैसे नहीं है तो तुम अपना गोल्ड दे दो। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो गोल्ड सेल होता जाता है विच बिलोंग्स टू द वुमन, और उसमें उस चीज़ पूरे फिनोमिनन को भी आप इकोनॉमिक अब्यूज कह सकते हो, ठीक है। बिकॉज that money she is entitled to, that gold she is entitled to it, but the husband is using it for the sake of his own things. मैं इसको बिल्कुल नेगेटिव लाइट में नहीं देखा जाना चाहिए। ऑफ कोर्स partners, they help each other out, but I'm saying that there are women who also earn their own money, and then husbands beat them up and say, okay, please just give me this money, and most of them are addicts. You'll see a lot of these. Actually, I was reading for one of my cases, I was reading a judgment from the Supreme Court, and some area in, I think, Okada, and that was a 2013 की judgment थी, but उस case में ये था that the husband was an addict, and he would beat the wife and would say कि just give me whatever you're earning. The wife was a earning woman, ठीक है। And then one fine day he brought a knife, trigger warning to people, he just brought a knife and killed her, and then this little minor daughter also came and उसको बचाने के लिए, and she also got some of the bruises as well. And these are things that have actually happened, and the reason, the motive of the crime, that is very clearly written in that judgment as well, is that the husband was an addict and he was constantly asking for money. That day she just refused, that I can't give you my hard-earned money, and that is the reality that she faced. And all of that is in writing, all of that is in judgment. These are real cases that come to district court and high court and the Supreme Court level, ठीक है। तो मेरा ये बताने का मकसद आपको ये है कि ये चीज़ को लोग अगर कहते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता, ये तो आप अपनी मर्जी से चीज़ बना रही हैं। एंड टू द एक्सटेंट दैट व्हेन वी वर at one point we were talking about this law, some of them did not even believe in the ethos of the law as well. Okay, why do you need a separate law when there's already Pakistan Penal Code, ठीक है। But at the same time, I would say I don't really want people to lose hope in the justice system. As I mentioned, there are few judges who have given me really good judgments. जैसे emotional violence की मैंने आपको बताया था, तो there are mechanisms if you're very strategic and very careful with the way you approach a lawyer, and you have a conversation with your lawyer, and then how your lawyer prepares the entire case and goes to the court and presents it. तो जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आप उठाते हो, आपकी रिसर्च क्या होती है, किस तरह आप कन्विंस करते हो, देन यू कैन डेफिनेटली win a certain case, because there are exceptions that are there. ओके खुशबक, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, फाइनेंशियल अब्यूज़ हो गया, इमोशनल अब्यूज़ हो गया, इफ़ समवन वांट्स टू फाइल अ केस, तो इफ़ यू कैन मेक इट क्लियर टू आवर ऑडियंस कि किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। Yes, that is crucial and so important. Every woman who's just watching right now, I think they should know. Initially you have to identify कि आपका जो situation है, if you're talking specifically about
domestic violence, ना high risk है कि low risk है, ठीक है. Now high risk के अंदर कि if somebody has threatened you that they're going to kill you, if somebody has threatened you, आपको अपनी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, then you have to directly go to the police, file an FIR, tell them कि okay this person is threatening me to kill. अब वो आपका attempt की provisions के अंदर आता है. पाकिस्तान penal code में बहुत सारी harassment के provisions में आता है, assault के provisions में आता है, and different things, ठीक है. So you have the option always to go to the police. Now police also has now created many women wings बना दिए हैं, domestic violence wing बना दिया है. There are women police officers who can help you out with that as well. So अगर कोई visible injury है, police आपको medical legal examination के लिए भेजती है to a government hospital. They get you the documentation done और उसके बाद they register an FIR and then they start an entire investigation. अगर arrest करने की बात होती है तो they arrest the culprit and then फिर आपका एक कोर्ट का एक केस चलता है and the prosecution then handles it. But थोड़ा सा ये strenuous होता है, थोड़ा सा overwhelming होता है ये process, but I would say lean on to your friends, अपनी family, जो भी एक इंसान हो जो आपकी बात को सुने समझे. I know दुनिया में there are many bad people, but I'm sure God will help you, or generally you will have one person who's going to help you because you're going to need a lot of support, ठीक है. So that's one way of doing this. If it's a let's say low risk हम generally कहते हैं economic abuse हो गया या फिर emotional violence जो कि सालों से होता आ रहा है, which is a continuing offense, लेकिन वो मतलब इस तरह नहीं है कि जिस पे आप जा सको कोर्ट, पुलिस जा सको and you register an FIR, but you need some sort of compensation for it. आप कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज़ का, मेरे साथ गलत हुआ है, then of course you have to hire a lawyer. Now finding a lawyer itself is a big challenge. I think now with social media people know. As you said, I use a lot of Instagram, so you can do a Google search, yes, but I would also say that for domestic violence and family law cases, yes, so you have to find a lawyer who listens to you and who understands this plight, and generally I think उस time पे आपको कोई चाहिए होता है who doesn't judge you and listens to you, ठीक है. So once you hire a lawyer, the lawyer will help you prepare a draft जिसमें आपको immediately at least protection order मिल जाता है if let's say you see that your former husband or current husband or some or whoever is in the vicinity, आपके ससुर हो गया या any सास or any person in the family who is harassing you, torturing you, you can get a restraining order against them. If it's emotional violence, then उसकी remedies fine भी होता है, imprisonment भी होता है, और compensation भी होती है. So you can ask for urgent monetary compensation as well. You can also well depend करता है कि what kind of remedy you're looking for. So ये मैं आपको low risk की बात, वैसे these are also you can high risk ही होते हैं because multiply it and women they just lose their rational abilities, they lose their brain power and a lot of strength, physically weak हो जाती हैं of course, but just for the sake of clarifying this, तो मैंने इसलिए इसको low and high risk में convert किया. खुशबक, यू मेंशन कि मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, इनिशियल स्टेप है कि आपने पुलिस स्टेशन जानी है और FIR फाइल करनी है, बट दैट इटसेल्फ इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ होप. तो मतलब अगर चले भी जाए ना, सपोज कि किसी ने हिम्मत करके और वो चले गए केस फाइल करने के लिए, वहाँ पे भी अक्सर अगर आप बता दें दैट मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो वो यही कहते हैं कि मतलब ये वायलेंस जो हुआ है आपके बाप की वजह से, भाई की वजह से, शौहर की वजह से, इन लॉस की वजह से हुआ, घर का मामला है, सॉर्ट इट आउट, 3 घंटे ले लें, 4 घंटे ले लें, मतलब दे डोंट फाइल द केस. बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद, और ये भी बहुत प्रेशर देना भी बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि आपको होप नहीं मिल रही होती ना, तो यू जस्ट मतलब गिव अप कि बस नहीं हो रहा, छोड़ो. मतलब वो जो इतनी मुश्किल से आप करेज गैदर करके आए, यू जस्ट लूज होप. और सपोज कि आपने वो केस फाइल कर भी दी, उसके बाद देयर इज़ अ फेयर ऑफ रिटेलिएशन. मतलब वेयर इज़ द सेफ स्पेस टू गो, आप किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करेंगे. सो हाउ कैन समवन डू दैट, मतलब व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन ऑर्डर फॉर दैट? Yes, that is a great question as well because a lot of the clientele that's come to me, they are working women, so they had something to lean on to. Not necessarily उनके पास इतनी supportive families नहीं थी, but क्योंकि मतलब they had
had some savings so they could find another space. हमने कुछ cases में residence orders भी निकलवाए थे कि अलग separate home दिया जाए. Um, so I would say that you have to, I know it's very difficult. Some of the clients, they come, they say कि when all of this happened, we never had any videos, any audios. We never had, we never wrote it down, we never told anybody. So इस तरह की situations बहुत ज़्यादा आती हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा restrict हो जाते हैं. A lot of times, you know, a lot of dismissals have also happened because our system is so obsessed with the proof. And I always say कि domestic violence में थोड़ी सी leniency होनी चाहिए because चार दीवारी में जो हो रहा है वो sometimes people don't fail to even recognize or identify कि okay, this is abuse, because we feel कि okay नहीं ये तो husband है, he can say whatever he wants to say to me. सास ने बोल दिया ये तो मेरा काम है, you know, इस तरह की चीज़ें करना है. I think मतलब इस तरह से related जो भी चीज़ें हैं. So ये अगेन मैं वही बोलूँ कि बहुत नुआंस्ड ऑफेंस है. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, आई एम श्योर इवन रूरल एरियाज में भी women have TikTok now, women have WhatsApp. I do would encourage them to find more information on it online. और अगर उनको ये आइडेंटिफाई कर लेती हैं, होपफुली आई वुड रियली वांट ऑल more and more women become more emotionally aware like that. डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं. आप उस ऑफेंस को लिखकर आप कुरियर भी कर सकते हैं. आप बाइकिया के हाथों भिजवा दें या आप किसी के हाथों भिजवा दें या आप खुद जाके दे दें चुप कर. सो आप घर से नहीं निकल सकते तो ये एवेन्यूज़ भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं एंड पुलिस विल गेट इट. ठीक है, इमीडिएटली एक्शन नहीं लेगी पुलिस, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर इन द कोर्ट, व्हेन यू हैव टू प्रूव समथिंग, आप ये कह सकती हैं कि आपने बहुत दफ़ा इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की है. सो दैट्स हाउ यू बिल्ड योर एंटायर केस. वुमेन हैव टू बी स्मार्ट एंड आई नो दे आर ऑलरेडी स्मार्ट, बट दिस एक्सेस रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन बस नहीं है. बट आई होप यू नो पीपल आर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट एंड कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक. कि आपने राइटिंग में लिखा, आपने किसी कॉन्फिडेंट को बताया हो, आपने किसी नेबर को बताया हो, सो दैट दे कैन कम एंड बिकम योर विटनेस इन द कोर्ट. आपने चीज़ें रिकॉर्ड की हों. हाँ, वो एविडेंस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आप रिकॉर्डिंग कौन सी चला सकते हो कौन सी नहीं, बट टुडे एवरीथिंग इज ऑल अबाउट यू नो वीडियोज एंड वॉइस नोट्स एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दैट. ठीक है, एक महीने तक भी. एंड ऑल्सो यू नो इफ यू कैन possibly meet a lawyer 6 months before या 3 months before filing a case, या give it some time so that you know you have ample evidence to go to court and say कि I'm not lying, I am a survivor and I need the insaf that I'm looking for. So ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. And I hope I had another way. I hope our systems were sensitive enough कि औरत बगैर प्रूफ के जाती और उसकी बात मानी जाती. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी क्योंकि और इसका ऑल्टरनेट हमारे पास आई होप एंड आई एम होपिंग कि हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे हो जाएं कि औरत अगर आती है ये कहती है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है या उसके साथ घरों में तशद्दुद हुआ है तो उसको एक जजमेंट की नज़र से नहीं देखा जाए. और मुझे पता है कि हम भी अपने घरों में हमारी भी इस्लामिक एजुकेशन रही है. सहाबा कराम या हमारे प्रॉफिट्स जो हैं उनके पास भी ख़वातीन आती थी अगर अपनी डिफरेंट ग्रीवेंसेस लेके, या स्पेशली अगर बोलते हैं कि हस्बैंड तशद्दुद कर रहा है या फिर घर में से कोई ज़्यादती कर रहा है तो उनको इस नज़र से नहीं देखा जाता था, बायस की नज़र से या क्वेश्चन किया जाता था. तो मैं ज़्यादातर लोगों को यही एक्सप्लेन करती हूँ कि ये नहीं समझा जाए कि कानून जो है वो अन इस्लामिक है. नहीं, हमारा फैमिली लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, ये सारा शरीयत से ही इवॉल्व हुआ है. और ये मैं कह रही हूँ आपको, हार्वर्ड की रिसर्च है ये, आप में बहुत सारे फेमस मुस्लिम स्कॉलर्स की रिसर्च है. और क्योंकि मेरा काम फैमिली लॉ के अंदर, हमारा कानून ही मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इन सारे किस्सों से डिराइव करते हैं. सो मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी जजमेंट आई होप कि हमारे सिस्टम्स में नहीं हो. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई वुड से दैट वुमेन हैव टू बी रेडी.
आप लोगों ने, मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स बताया, UN women में 1 in 3 women are suffer some form of violence. एक 10 साल बाद फिर से वही स्टेटिस्टिक्स है. मैं नहीं चाहती कि अगले 10 साल बाद भी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ वही स्टेटिस्टिक्स है. एंड ये एक साइलेंट एपिडेमिक है विच आई रियली फील के औरतों को और ज़्यादा they already have the strength. They already have the strength. Somebody has to just nudge them and tell them कि you have to do all these things. ये थोड़ी materialistic लगती हैं कि मैं क्यों एक शादी के रिश्ते के अंदर मैं इतनी स्क्रूटनी करने लग जाऊँ, लेकिन जब आपका सर्वाइवल थ्रेट होता है ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी करनी पड़ती हैं. And as a lawyer, I mean, I really encourage all of the women out there who are going through something like that to start collecting evidences, or start to protect yourself more. बिल्कुल खुशवक्त ऐसा ही है, और आपने अपनी पूरी कन्वर्सेशन में ये मेंशन किया है, जब एविडेंसेस की बात आती है ना, तो वुमेन आर एक्चुअली वेरी फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग एज वेल. मेरा शौहर है, कोई बात नहीं, दरगुजर कर देते हैं. मेरे बाप ने किया, मेरे भाई ने किया, जस्ट फॉरगिव इट. इन्होंने इतना मेरे लिए किया है, जस्ट फॉरगिव इट. तो इस फॉरगिविंग के चक्कर में भी शायद वो एविडेंसेस रखने का ख्याल कभी आता ही नहीं. बट व्हेन थिंग्स एक्सीड, मतलब जब वो आपकी हद से बढ़ जाते हैं एंड यू एक्चुअली वांट टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, देन यू स्टक ओवर देयर कि आपके पास एविडेंसेस नहीं है. दैट्स वेरी ग्रेट कि आपने मेंशन किया किस किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है. खुशबक, यहाँ पे एक और बड़ा चैलेंज ये है कि मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता लॉयर. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर अ वुमेन टू रीच अ लॉयर, और इज देयर एनी फ्री लीगल एड, और कोई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें? I would say I'm a big fan of one organization. It's called Legal Aid Society. They do a lot of pro bono work, and they give a lot of assistance. They provide a lot of information. So, उनका office भी कराची में ही है. So, I think the viewers can look it up on the internet and connect with some people. I also do a lot of pro bono work. I have my non-profit Adal और सेहत, and we have several projects on legal aid. So, हम वो चीज़ें भी देखते हैं. A lot of minorities से रिलेटेड केसेस हो गए, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केसेस हो गए. बट ऑफ कोर्स वी डू सी थ्रू व्हाट आर द जेन्युइन केसेस. Lawyers also have to not provide a lot of pro bono service hours. So under the regulations, we do as much as we can. Yeah. ओके, आर दे ऑनलाइन एज वेल? कैन पीपल रीच देम ऑनलाइन? क्योंकि बहुत जगह दफ़ा ऐसा होता है कि आप मतलब फिजिकली रीच आउट नहीं कर पाते, उनका ऑफिस नहीं विजिट कर सकते. और देयर एनी हेल्पलाइन नंबर टू रीच आउट जो ऑफिशियल हो कि हाँ भाई घर बैठे ही आप जो है अपना केस फॉरवर्ड कर सकते हैं उन तक? इज इट पॉसिबल? I know Legal Aid Society has an online number. I think that's its उनकी helpline is called SLAC, Sindh Legal Advisory Call Center. That is funded by the government of Sindh. That has taken a lot of different calls. I think you can definitely do that. Even 15 ka police ka call, I think they've become a bit efficient now, and I think people should utilize that helpline as well. And I think in other provinces as well, there's National Commission of Human Rights. There are several other projects that they have initiated as well. So I think these are some of the very good organizations that are doing great work, and I love to mention them whenever I can. Yeah. आप सिंध को जो है बार बार मेंशन करती हैं, मतलब सिंध लॉ, इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ फैमिली लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस एंड इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज के हर प्रोविंस का अलग है? बिकॉज यू हैव बीन मेंशनिंग सिंध स्पेसिफिकली. So I will say, to my knowledge, पंजाब में जो लॉ आया था वो नोटिफाई हुआ था मुल्तान प्रोविंस में, मुल्तान सिटी में, एंड आई थिंक रिसेंटली वो लाहौर में नोटिफाई हुआ था. लेकिन आई हैव नॉट हर्ड ऑफ अ सिंगल केस दैट हैज बीन फाइल्ड अंडर दैट स्पेशल लॉ. ठीक है, पीपल आर स्टिल यूजिंग द जनरल लॉ विच इज पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं. ठीक है, and उसका रीज़न यही हो सकता है, maybe because there's not a lot of money in domestic violence litigation. Maybe it is people find it very emotionally draining. Maybe there is gender bias. They think कि okay, women are and I've heard a lot of judges, a lot of lawyers say कि okay, the work that you're doing, you want families to be separated. No, I want families to be happy. This, as I mentioned, 1 in 3 women. I know 1 woman, 2 women, 3 women. Every single day I meet 1 woman who is going through some sort of a trauma.
inflicted by their own family. और मैंने ये mention नहीं किया कि domestic violence law के अंदर सिर्फ ससुराल और husband नहीं आते हैं. Even in your own family, you know, we see a lot of abusive brothers, a lot of abusive dads, parents as well. You can always go and you know, and say कि this emotional abuse or physical abuse has been inflicted by them as well. Yes, I'm not, contrary to what people say, I'm not promoting separation of families. I'm promoting more harmony in families. That's something what Islam also has been dictating for years. But I think हमने culturally उस concept को इतना extreme level पे लेके चले गए हैं that I think कि, you know, generally our society is very hesitant to talk about or express their love to each other. I haven't seen my parents, you know, holding hands and saying, okay, you know, you're the love of my life. And then children, you know, they grow up and then they learn that maybe expressing love is not a good thing. But I think our Sahaba used to do that all the time. So I really feel कि हम as a society, we need to, all of us deserve happiness. And we are, you know, product of some sort of trauma because we haven't really taken out the time to understand कि आप relationship में behave कैसे करते हो, ठीक है? So कानून को सामने लेके आने का मकसद ये है कि I want Pakistan and our families to be happy families. And it's just a small little dream that I have. And उसमें क्या बुराई है, right? So you just have to be very smart about how you're using the law, and law has immense potential and power to achieve that sort of result as well. And the law also offers counseling. वो आपको directly नहीं बोलते कि इसको सजा दे दो और इसको जेल के अंदर डाल दो. I'm not promoting that as well. I'm just saying that law also offers counseling, mediation services. Bring the family, meet at some other place. Just it should be, you know, court authorized. Yeah, you know, bring somebody who you are comfortable talking to. Just resolve the differences, but you have to communicate the differences properly. Don't go at an extreme length where you're saying कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला या इसने मुझे ऐसा क्यों कहा. I think negotiation, generally speaking nicely to each other, understanding, even listening, I would say. The first thing you should do is listen to people, right? So yeah, so coming back to again what the provinces are doing. So to my knowledge, I think पंजाब में मैंने कोई केस नहीं सुना इस कानून के अंदर. इस कानून की कितनी हरकत हुई है ये भी मुझे नहीं पता. बट एज फार एज 2025 की अगर हम बात करें, आई डिड मीट सम ऑफ द ऑफिशियल्स देयर एज वेल. तो वो कानून नहीं यूटिलाइज हुआ, ठीक है. KPK के अंदर भी, इन बलूचिस्तान के अंदर भी, आई थिंक अराउंड 2016 या 2021, इन दोनों डेट्स के दरमियान ये कानून भी आया था, राइट. इस्लामाबाद में 2020 में ये लॉ प्रपोज हुआ था. एंड आई एम नॉट श्योर if people were following the news at that time. There was an objection that was raised, you know, बहुत सारे elements थे, and they said that this is an un-Islamic bill, and this shouldn't be passed. So a lot of clients, they call from Islamabad and say, I am facing these threats, or I saw your judgment on emotional violence, or I saw you posting about it, and you know, I want a similar remedy. But I tell them, okay, I'm really sorry, but there's no law that can protect you. ये सिर्फ सिंध के अंदर है and everything. So Islamabad is a capital of the country, but we don't have a special law over there. तो इस तरह की भी आप चीज़ें देख रही हैं कि जहाँ पर सिंध थोड़ा प्रोग्रेसिव है, वहाँ पर इस्लामाबाद जैसा कैपिटल, you know, it's a capital territory, so that is still grappling with some sort of इस तरह का different thought process उनका है. ये है. So I really would want, my vision is that all the law, the way सिंध में मैं उसको promote करने की कोशिश कर रही हूँ, and hopefully inshallah in other provinces as well. More lawyers should be interested in it. I'm mentioning it's an epidemic that needs to be controlled. I think law holds an immense power. That is something that we shouldn't even really see it as charity. I think it's really important, is imperative that all of us have to take a stand. I mean, nobody is trying to say men are bad. Nobody is trying to say women are angels. I just want to say that we both need each other. Both genders need each other. We just need to find a way where we can
behave properly, we can talk to each other with a lot of love, we are respectful towards each other. That's the foundation of a relationship, and that's the kind of example you would want to create for your children as well. और हर साल इतनी शादियां होती हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, so many grand weddings, and I mean, I'm a divorce lawyer. Then next year they're getting divorced also. Because there are several problems that are cropping up, right? Maybe they're not understanding about relationships, about the contract that they're getting into. Nikah nama ko koi nahi padta hai. So I really want the families to focus more on, helping the couple uh, develop great communication and understanding, and give them the time to learn more about themselves, and just be kind and nice to each other, right? So, Drosham, whenever, people get to know, okay, I'm a divorce lawyer, कस्टडी केसेस देखती हूँ जिसमें एक बच्चा या तो माँ के पास जाता है या बाप के पास जाता है, थिंग्स लाइक दैट. आई नो लोगों को लगता है कि इट्स लाइक अ मैन वर्सेस वुमन, या मैं थोड़ा सा फैमिलीज को तोड़वाने वाली बात होती है, इसीलिए लोग बोलते हैं ये तो वकील है, तो इस तरह से people attach a negative connotation to it. But I would very much want to say that family laws are there, even laws are there. जैसे हम whenever somebody gets married, निकाहनामा का एक पूरा बहुत comprehensive document है जिसको unfortunately हम read नहीं करते हैं, but that is there so that there is harmony amongst the couple, and that is also again derived from our Islamic law, that is also derived from our local national law as well. तो कहने का मकसद ये है दैट ये जो हम जनरली एज अ सोसाइटी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अटैच कर लेते हैं टू लॉ एंड टू फैमिली लॉ, दैट इज़ नॉट द केस. If you utilize it properly, then the law is there to actually save families, or you can say create more happiness in families. I love using that word. I think it should be used quite often, and to bring more, let's say, to generate more love amongst each other, आपके with your parents, with the couple who's getting married, and the children that you'll give birth to. So I think that it has to be viewed from that lens, and the law is there to protect you. It's just there to create happiness. थैंक यू सो मच खुशबख्त. इवन एट मॉमकास्ट हमारा मकसद ही यही है इन सेशंस को करने का. एक तो लोगों में अवेयरनेस आए एंड वुमेन नो हाउ टू स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप. सिर्फ वुमेन ही नहीं, मर्द हजरात भी देख सकते हैं, बिकॉज द फैमिली लॉ इज़ नॉट ओनली फॉर वुमेन ना, इट्स फॉर द फैमिली. एक हस्बैंड वाइफ वो मिल के फैमिली बना रहे हैं. आपने कस्टडी की बात की, तो मतलब हाउ मच द चाइल्ड स्ट्रगल. तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ब्रेकिंग द रिलेशन, उस रिश्ते को जोड़ने की बात होती है. So thank you so much खुशबख्त for coming and sharing a lot of knowledge, giving us a lot of awarenesses. I hope ये जो है हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको भी आज का पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा, you have learned from it, then don't forget to share your thoughts in the comment section and hit the like button और subscribe करना मत भूलिएगा मॉमकास्ट को. Thank you so much. Thank you खुशबख्त. Thank you.